माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। यहाँ हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं, हर स्टेप को अच्छे से समझते जाएंगे और हर कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करते जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स। गौर से देखें। Suppose we have A equal to 3, 2, 7, minus 4, 8, 6. B equal to e to the power x, x square, sin x, 7x. Now definition क्या हो जाएगी, गौर से देखें। A rectangular arrangement of numbers or functions. A rectangular arrangement of numbers or functions in rows and columns is called matrix. अब क्वेश्चन ये उठता है, what do you mean by row? What do you mean by column? Elements in horizontal lines are known as elements of rows, and these vertical lines are known as columns. So elements of first row 3, 2, 7. Similarly, elements of second row minus 4, 8 and 6. First column means 3 and minus 4. Elements of second column 2 and 8. Elements of third column will be 7 and 6. I think point is clear. A rectangular arrangement of numbers or functions in rows and columns is known as matrix. Matrix is represented by alphabetical capital letters A, B, C, clear, enclosed in big brackets. Next point, order of matrix. Order of matrix. If a matrix has m rows and n columns, then order of matrix is m by n. In this example, it has first row, second row. It has two rows. And first, second and third, 3 columns. So order of matrix 2 by 3. In this example, having 2 rows and 2 columns, so order of matrix 2 by 2. I think order of matrix is clear. Next part, representation of matrix. Representation of matrix. A equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. क्या मीनिंग हुआ इसका, ध्यान से समझें। अगर मैं लिखता हूं A32, A32 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो means this element. It is element of third row and second column. Element of third row and second column. Similarly, A12 means element of first row and second column. I think point is clear. अब गौर से देखें, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, गौर से समझने की कोशिश करें। Construct a matrix A equal to Aij of order 2 by 3 given Aij equal to 2i plus j. We have to form a matrix A equal to Aij of order 2 by 3 given that Aij equal to 2i plus j. It is relation. सबसे पहले हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते हुए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें बनाना है 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो मीन्स मेरे दिमाग में क्लियर है 2 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हर एलिमेंट इस रिलेशन से रिलेटेड है। लेट ए इक्वल टू 2 रोज और 3 कॉलम्स, मीन्स A11, A12, A13, A21, A22, A23। इस मैट्रिक्स में अब 2 rows and 3 columns. Now order is 2 by 3. अब मुझे ये सभी एलिमेंट्स फाइंड करना है with the help of this given relation. गौर से देखें, given क्या गिवन है? Aij is equal to 2i plus j. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करना चाह रहा हूं A11, तो मैं लिखूंगा A11। अब i की जगह क्या रख दूंगा? 1 और j की जगह भी 1, तो A11 कितना हो जाएगा? 2 into 1 plus 1, इसका मतलब 3 हो गया। अब मैं लिखना चाह रहा हूं A12, तो i की जगह रख दूंगा 1, j की जगह 2, इट इज 4। बड़ा आसान काम है। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूं A13, तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 plus 3 is equal to 5। अब हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट A21 मीन्स इसी रिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे? i की जगह रख देंगे 2 और j की जगह 1। A22 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 into 2 plus 1 is equal to 5। A23 2 into 2 plus 3 is equal to 7। अब गौर से देखें, हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए 3 4 5 5 6 7। रिजल्ट A equal to 3 4 5 and 5 6 7। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ट्राई और बेस्ट कि जो भी मैं क्वेश्चन लिखूं उसका जवाब आप खुद मन में सोचें, आप खुद उसको देने की कोशिश करें। सेम कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A equal to Aij of order
3/1 given I square plus j square. पहला स्टेप 3 rows and 1 column. A11 first row, A21, A31. 1, 2, 3. 3 rows and 1 column. So order 3/1. यहां तक क्लियर है? पहला एलिमेंट मुझे लिखना है गिवन aij equal to I square plus j square. A11 1 square plus 1 square is equal to 2. अब मुझे अगला एलिमेंट लिखना है A21 means 2 square plus 1 square. A31 3 square plus 1 square. अब मेरे पास एलिमेंट आ गए 2, 5 एंड 10. हम लोग इसका रिजल्ट लिख देंगे. गौर से देखें. अब मेरे पास 3/1 का एक मैट्रिक्स मिल गया जिसके एलिमेंट इस रिलेशन से रिलेटेड है. ये एलिमेंट्स आ गए 2, 5 एंड 10. ऑर्डर 3/1. मेरे ख्याल से आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट पार्ट इक्वल मैट्रिक्स. नाम से ही पता चल रहा है 2 मैट्रिक्स ए और बी इक्वल हैं. अगर हम अच्छे से सोचें तो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम हो, पहली कंडीशन. दूसरी बात, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. जैसे देखें आप ध्यान से, ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू 3, 7, 2, -4. 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं. पहले का ऑर्डर देखें आप 2/2, 2/2. तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई? 2 मैट्रिक्स A and B are equal if number 1 their order is same, number 2 corresponding elements are same. In this example, A equal to B if number 1 order is same, A equal to 3, B equal to 7, C equal to 2 and D equal to -4. एक बार वापस समझें, ये मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों इक्वल होंगे. पहली कंडीशन, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. इन दिस एग्जाम्पल ऑर्डर इज सेम. अब इक्वल कब होंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तीसरा वाला तीसरे के इक्वल, चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल. ये कंडीशन फुलफिल होने पर ही ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे. इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड राजस्थान बोर्ड 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है. अब एक हम सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे. If 2x minus y, 4y, 3, 7 is equal to 3, 7, 10, if this equal to this,
देन क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहली कंडीशन ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, जो कि हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अननोन वैल्यूज x एंड y। हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के बराबर रखेंगे, 2x minus 5 equal to 10. What we are getting? 2x equal to 15, x equal to 15 by 2. मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। नाउ सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करें, 4y equal to 8, y equal to 2. तो इक्वल मैट्रिक्स अगर उनका ऑर्डर सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो हम अननोन वैल्यूज आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। हर पार्ट को ध्यान से समझते जाएं, नाम से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। नंबर 1, अब मैट्रिक्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। तो लिखेंगे हम लोग, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. For example, A equal to 3, 5, 7. Number of rows 1, number of columns 3, 1 by 3. Similarly, another example, B equal to 2, 8, minus 4, 7. It has one row and 4 columns. So order of matrix is 1 by 4 and order of this is 1 by 3. एक बार फिर समझते हैं, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. Number 2, column matrix. नाम से ही क्लियर है, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. 3, 2, 8. रोज कितनी भी हो जाएं, लेकिन कॉलम केवल एक होना चाहिए। It has 3 rows and 1 column. So order will be 3 by 1. Next part, zero matrix or null matrix. नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पर ये जो दो मैट्रिक्स थे, ये इनके ऑर्डर से डिफाइंड हो रहे थे कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। 2 rows and 3 columns, 2 by 3। Order of matrix
3 by 3 having all elements 0. It is called zero matrix. Next important type is square matrix. अब गौर से देखें, नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर शेप हो, और कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए तभी स्क्वायर शेप बनेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, बस दिमाग चलाना है। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले एक एग्जांपल देता हूं, 2 -5 7 6 8 3 9 4 -8 3 by 3 1 2 3 3 rows 3 columns। अब डिफाइन कैसे करें, a matrix is said to be a square matrix if number of rows equal to number of columns। A equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करें। It has 3 rows and 3 columns, so order is 3 by 3। एक खास चीज ऑब्जर्व करेंगे, I equal to J 1 1 2 2 3 3 means number of rows equal to number of columns, and these elements are known as elements of principal diagonal. In the square matrix, these elements are known as elements of principal diagonal. Elements of principal diagonal are A11 A22 A33। next part, diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से समझें। पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। 3 0 0 0 5 0 0 0 8। पहली बात, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरी बात, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हों। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। अब डिफाइन कैसे करें वो देखें। A square matrix in which all elements other than principal diagonal are 0। Aij equal to 0 if I not equal to j। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर ये क्या लिख दिया, ध्यान से समझें। इसी को देख के हमने लिखा है, ये एलिमेंट कौन सा है, A11 A12 A13। A11 में क्या हो रहा है, I equal to j 1 equal to 1। ये एलिमेंट कौन सा है, A12। जब I और j बराबर नहीं होंगे हमें 0 लिखना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देखें A13 I not equal to j, so it is 0। अब आप कहेंगे सर प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ 3 5 8
उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ये एलिमेंट A21 I not equal to j, so we will write 0. A31 I not equal to j, so 0. It is known as diagonal matrix. इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A equal to diagonal A11 A22 A33। सेम इसी मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखता, A इक्वल टू डायगोनल 3 5 8। यहां तक हमने कर लिया डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझें, डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे। जैसे हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझें। अब है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल भी है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हैं। नाउ हाउ टू डिफाइन अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। गौर से देखें, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। बड़ा आसान है। A is equal to 0 if I not equal to j and k if I equal to j। ध्यान से देखें, A11 A22 A33 जब i और j बराबर हैं तो वैल्यू होगी k, एनी कांस्टेंट। जब i और j बराबर नहीं है तो रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। इसी ढंग से मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, b इक्वल 3 0 0 0 3 0 0 0। इसी तरह का नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है। खास बात क्या है, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0। हम कहीं भी रटेंगे नहीं, एक एक स्टेप को, एक एक चीज को दिमाग में सेट करते जाएंगे। I3 how to define a diagonal matrix in which all elements of principal diagonal are unity or 1. It is represented by IN. Unity matrix or identity matrix is defined as IN is represented as IN, where N is order of matrix. I am writing I3 equal to then this I2 1 0 0 1, identity matrix of order 2 cross 2। Aij equal to 0 if I not equal to j, 1 if I equal to j। बिल्कुल क्लियर है, 0 होगा अगर I not equal to j, 1 होगा यदि I equal to j। Next part, triangular matrix, triangular matrix. It has two kinds. Number 1, अपर ट्रायंगुलर। डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे।
A equal to upper triangular matrix 5 3 7 0 0 0 6 4 9. प्रिंसिपल डायगोनल, नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। खास बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। A square matrix in which all elements below the principal diagonal are zero is known as upper triangular matrix. We can write it as Aij equal to 0 if I greater than j. This element is A11, I equal to j. It is A21, I greater than j, we have to write it as 0. It is A31, I greater than j, so 0. It is A32, I greater than j, so 0. In this manner we can define upper triangular matrix. हम upper triangular matrix को इस ढंग से define कर सकते हैं. Similarly, lower triangular matrix Now in case of lower triangular matrix, A equal to if all elements above the principal diagonal are 0, then it is known as lower triangular matrix. Aij equal to 0 if I less than j. It is A12, I j से छोटा है, 1 2 से छोटा है तो 0 लिखना है. ये A13 एलिमेंट है, I j से छोटा है, सो हमें 0 लिखना है. इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स. हमने सभी मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ लिए. इन सभी पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लें. मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब खास बात, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस का भी आपको बेनिफिट मिल सके. थैंक यू वेरी मच.